Okay, so in first session we have seen that there are in immune system there are lymphoid organs are involved, which makes the immune system work properly. In lymphoid organ there are two type of lymphoid organ. First is primary lymphoid organ and second is secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organ involve two kind of organ. First is bone marrow and second is thymus. While secondary lymphoid organ involve majorly lymph node and spleen and other mild associated lymphoid tissues. In this video section, we are going to discuss about the primary lymphoid organs, that is bone marrow and the thymus. We will discuss first about bone marrow and then about the thymus. Okay. Now, bone marrow. What is bone marrow? So, bone marrow is a soft tissues within the cavity of bones. It is a soft tissues within the cavity of bones. Bone marrow is an important primary organ. Bone marrow, this is a cavity of bone. In this cavity of bone, there is a spongy biomass present. This spongy biomass is very much important. This portion is called as a bone marrow. This bone marrow is divided into two sections. First is vascular region and second is hemopiotic region. Every portion of this bone marrow has a specific role. Usually bone marrow, the vascular portion and the hematopoietic region. Hematopoietic region is called as a red marrow. They have the activity which is called as hematobiosis. What do you mean by hematobiosis? Means in the red, like spongy biomass, there will be a process in bone marrow that is called as a hematobiotic stem cell. Hematobiosis. Hematobiosis means it is a process in which a stem cell is divided into the multiple different cells of immune system. बोन मेरो के अंदर जो स्पॉन्जी बायोमास प्रेजेंट होता है उसमें जो हीमेटोबायोटिक रीजन है उसको रेड मेरो कहा जाता है. रेड मेरो के अंदर हीमेटोबायोसिस प्रोसेस चलती है. हीमेटोबायोसिस प्रोसेस क्या है कि स्टेम सेल जो है, स्टेम सेल को टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है. टोटीपोटेंट सेल्स मीन्स ऐसा सेल कि जो अलग अलग टाइप के डिफरेंट सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सके, और वो जो डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस है उसको कहा जाता है हीमेटोबायोसिस. हियर यू कैन सी दिस इज अ स्टेम सेल which is divided into a multiple different kind of immune cells. एंड ये प्रोसेस कहाँ पे चलती है? ये प्रोसेस बोन मेरो के अंदर चलती है. बोन मेरो में भी स्पेसिफिकली जो रेड मेरो रीजन है, हीमेटोबायोटिक रीजन, वो जगह पे चलती है. दीज आर द इम्यून सेल्स that we will that we have discussed in the separate video. ये सब immune cells जो है, these are the soldiers which work for the immune system and it protects our body from the foreign particles. तो ये पूरा प्रोसेस, इनकी सारी जनरेशन का प्रोसेस कहाँ पे चलता है? बोन मेरो में चलता है. इसलिए बोन मेरो को क्या कहा जाता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहा जाता है. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बोन मेरो? इट इज अ साइट ऑफ जनरेशन ऑफ all the immune cells, B cell, T cell, macrophage, phagocyte, other phagocytic cells, सब. ठीक है. कुछ इम्यून सेल्स जो है वो यहाँ पे मैच्योर भी होते हैं. सारे सेल यहाँ पे मैच्योर नहीं होते हैं. मेजर जो बी सेल है जो एंटीबॉडी बनाता है, वो सेल यहाँ पे ही मैच्योर होता है, डिफ्रेंशिएट होता है. जबकि टी सेल जो है वो प्रोड्यूस बोन मेरो में होता है, लेकिन मैच्योर होने के लिए वो थाइमस में जाता है. तो मोस्टली सारे सेल नहीं, लेकिन काफ़ी सेल्स जो है वो बोन मेरो के अंदर जो है वो मैच्योर होते हैं और प्रोड्यूस भी होते हैं. ओके, हर किसी के अंदर बोन मेरो नहीं होता है. हर किसी के अंदर मीन्स हर किसी स्पीशीज के अंदर बोन मेरो नहीं होता है. ह्यूमन के अंदर बोन मेरो है. जैसे कि बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के अंदर बी सेल डेवलपमेंट के लिए इंस्टेड ऑफ बोन मेरो दे हैव द बर्सा ऑफ फेब्रिकस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखने लायक चीज़ है. राइट, रैबिट के अंदर बोन मेरो की जगह पे बी सेल का जनरेशन
उनके गट एसोसिएटेड लिम्फोइड अपेंडिक्स के अंदर होता है. इन कैटल्स इनिशियली जब वो छोटे रहते हैं, दैट इज इन द फेटल स्टेज, दैट अकर्ड इन द स्प्लीन. एंड जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. क्या जो फंक्शन बोन मेरो में है हमारे बॉडी के अंदर, हीमेटोपायोसिस का, वो फंक्शन बर्ड्स के अंदर बर्सा ऑफ फेब्रिकस में होता है. कैटल्स और शिप जब छोटे होते हैं तो स्प्लीन में होता है, वो बड़े होने पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. रैबिट के अंदर वो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज में देखा जाता है. तो ये है बोन मेरो. इट इज अ स्पॉन्जी बायोमास विच इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ स्केलेटन. मोस्टली जो बड़े बड़े स्केलेटन है हैंड के, लेग के, उसके अंदर काफ़ी अमाउंट में बोन मेरो प्रेजेंट होता है. एंड उसका काम क्या है, ये बोन मेरो है, उसका मेजर फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ डिफरेंट सेल्स. और ये सेल्स का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इम्यून सिस्टम. सो इफ देयर इज अ फेलियर इन बोन मेरो, obviously these cells will not generated, and if these cells are not generated, you will go into the immunosuppression condition, that is कि आपका immune system proper काम नहीं कर रहा है. So that's why the bone marrow should be proper. Okay? अब हम सेकेंड लिम्फोइड प्राइमरी ऑर्गन के बारे में बात करें. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो टाइप के हैं, जैसे मैंने इनिशियली वीडियो में बताया, बोन मैरो एंड थाइमस. ये दूसरा ऑर्गन है थाइमस. थाइमस का लोकेशन कहाँ पे है, इट इज जस्ट अबव, जस्ट बिटवीन टू लंग्स, अबव द हार्ट एंड बिलो द थ्रोट. ठीक है ना. ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के नीचे जो है वो थाइमस जो है वो प्रेजेंट है. थाइमस जो है अगर हम उसको बीच से सेक्शन करें वर्टिकल, सो इट इज डिवाइडेड इनटू राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब. ठीक है. थाइमस को अगर हम लोग वर्टिकल सेक्शनिंग करें और उसका इंटरनल सेक्शन देखने की कोशिश करें, तो इंटरनल सेक्शन में थाइमस जो है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज कॉर्टेक्स एंड सेकेंड वन इज मेड्यूला. कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. कॉर्टेक्स मीन्स अपर पोर्शन. वेट अ मिनट. इस पोर्शन को, यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को कॉर्टेक्स कहा जाता है, एंड उसके नीचे के मिडल रीजन के पोर्शन को मेड्यूला कहा जाता है. स्प्लीन के अंदर ट्रेबेक्यूले होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेबेक्यूले, कि जो स्टार्टिंग से लेके रूट तक जो है वो स्प्रेड हुए होते हैं. बाकी जो भी सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, वो सब थाइमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके. थाइमस का जो मेजर फंक्शन होता है, दैट इज इट इज अ साइट फॉर टी सेल डिफरेंशिएशन एंड टी सेल मैच्योरेशन. टी सेल प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, बोन मेरो के अंदर, लेकिन वो मैच्योर डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया है, दे प्रोड्यूस इन द बोन मेरो. ये बोन मेरो है, दे प्रोड्यूस इन द बोन मेरो, बट आफ्टर प्रोडक्शन दे विल मूव टू द थाइमस फॉर द मैच्योरेशन. राइट. डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन उनका जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे थाइमस में मिलेगा. ओके. द कॉर्टेक्स region, that is the upper portion, ये cortex region. Cortex region is mostly have the immature proliferating thymocytes, and medulla जो है that is populated with the thymus. Immature thymocytes आपको कहाँ पे मिलेंगे, cortex में मिलेंगे, जबकि matured and populated thymocytes आपको कहाँ पे मिलेंगे, medulla में. Okay. Usually the function of the thymus is to generate selected T cells. T सेल का जो भी क्लोनल सिलेक्शन है वगैरह काम है कि T सेल को क्या फंक्शन करना है, फंक्शन असाइन करने का काम, ये सब चीज़ें जो है वो थाइमस के अंदर होता है. ओके. अगर थाइमस नहीं है, कुछ बर्थ डिफेक्ट्स है, जैसे कि डाइजॉर्ज सिंड्रोम, उसमें 22 नंबर के क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से ये होता है. उसके अंदर जो बेबी बर्थ लेता है उनके अंदर थाइमस नहीं होता है. सो इट इज़ वेरी dangerous condition, because in this condition there will be no differentiation of T cell, and T cell is very major cell in the
एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, राइट। एक और है एक्सपेरिमेंटल माइस, जिसको न्यूड माइस कहा जाता है। इम्यूनोलॉजिकल वर्क के लिए ये न्यूड माइस यूज करते हैं। उनके अंदर ऐसा कुछ म्यूटेशन करवाते हैं कि जिसकी वजह से उनके अंदर थाइमस जो है वो ग्रो नहीं होता है। दिस इज एक्चुअल कंडीशन डाइजोर सिंड्रोम। एंड न्यूड माइस जो है वो एक्सपेरिमेंटल सिस्टम के लिए जो है वो होती है। Okay, this is about the two major lymphoid organ. Let's have a quick revision. The first primary lymphoid organ is bone marrow. Second primary lymphoid organ is thymus, right? Bone marrow include a spongy biomass. It is a core of a bones, right? The major function of this bone marrow is at this point in the bone marrow majorly immune cells are generated. Immune cells are like this. These are all immune cells which are generated in bone marrow. And इनके जो जनरेशन का प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज अ हीमेटोपायोसिस। हीमेटोपायोसिस में स्टेम सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होके ये अलग अलग सेल्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज थाइमस। थाइमस जो है वो बिटवीन टू लंग्स अबव द हार्ट एंड बिलो द थ्रोट जो है वो प्रेजेंट होता है। It is divided into two portion. First is cortex, second is medulla. Cortex के अंदर immature cells रहते हैं T cells, जबकि medulla के अंदर mature thymocytes रहते हैं। The function of cortex is to differentiate and to mature the T cells. And T cells adaptive immune system का बहुत ही important cell है। Without T cell it is very difficult to प्रोड्यूस एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एंड अगर कुछ बर्थ डिफेक्ट है जैसे कि डाइजोर सिंड्रोम, जिसमें 22nd नंबर के क्रोमोसोम में म्यूटेशन आने की वजह से टी उनके अंदर थाइमस जो है वो जनरेट होता ही नहीं है। इवन अनदर केस इज न्यूड माइस विच इज यूज एज अ एक्सपेरिमेंटल माइस, उनके अंदर भी थाइमस जो है वो नहीं होता है। तो दिस इज अबाउट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. You can ask the question if you have any doubt, and next video will be of secondary lymphoid organ. Okay, and after that in these 3 videos we have covered all the lymphoid organs.